Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today our topic of discussion is the writing process. So that is the part of the outline we have, and this writing process certainly we have to follow whenever we are preparing any educational document or any report on anything. So we have to follow certain criteria of the writing process. So first we'll discuss what the writing process is, and then we'll talk about different uh, strategies or steps we follow during the writing process. So the first question that we have here, it is, what is writing process? So the writing process comprises the mechanics by which writers create publishable products. It is the method or writers use to generate ideas, choose and organize these ideas, write and revise their pieces, and format them for publication. तो कोई भी जो राइटिंग प्रोसेस है बेसिकली उसमें राइटर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो पब्लिशेबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जो मार्केट में जानी होती हैं, जो व्यूअर्स रीडर्स के सामने जानी होती हैं. दैट इज़ वाई उसको एक प्रॉपर मैकेनिक्स को फॉलो करते हुए हमने उनको लिखना होता है ताकि वो एक्सेप्टेबल हो सकें, चाहे वो आप एक रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं या आप कोई एक असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी तरह का कोई भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें सर्टन स्टेजेस होती हैं जिनको आप फॉलो करते हैं. सो ये जो राइटिंग प्रोसेस है बेसिकली वो आपकी उस प्रोडक्ट को पब्लिशेबल प्रोडक्ट जो है वो बनाता है. तो यहाँ पे अगर उस डेफिनेशन के सेकंड पार्ट में आप देखें तो इट इज़ द मेथड और राइटर्स यूज टू जनरेट आइडियाज, कि आइडियाज को जनरेट कैसे किया जाता है, फिर उन आइडियाज को जनरेट करने के बाद उन आइडियाज को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, ऑर्गेनाइज करने के बाद उन आइडियाज को लिखा कैसे जाता है और उन्हीं आइडियाज को फिर रिवाइज कैसे किया जाता है और प्रॉपर फॉर्मेटिंग उन आइडियाज की किस तरह से की जाती है पब्लिकेशन प्रोसेस के लिए. सो इन दिस वे राइटिंग प्रोसेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप राइटिंग प्रोसेस के सर्टन इश्यूज स्टेप्स को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो राइटिंग की क्वालिटी है वो बेटर नहीं हो सकती. Okay, so the second, you can say it is a definition, and you can so also the importance of this writing process. So Dyson Friedman says, they both point out that over the past two decades, there has been a significant shift from a focus only on the products of writing to studying the processes associated with how writers write. So that is important कि कोई भी जो राइटर है वो किस तरह से लिखता है, वो किन किन स्टेप से प्रोसेस में से गुजरता है तो वो अपनी राइटिंग को बेटर बनाता है, अपनी राइटिंग को स्ट्रेंथन करता है और उसकी वीकनेसेस को लेसन करता है. तो वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं कि अगर वो राइटर उठाए तो वो उन अपनी राइटिंग को एक पब्लिशेबल बना सकता है, उसको बेटर बना सकता है, उसको एक्सेप्टेबल बना सकता है इन द आइज ऑफ द रीडर और इन द आइज ऑफ द viewer. Uh, the next step that we'll discuss in detail, that is the strategies or steps of writing process. So you can just look at the screen. There are at least six, or you can say five processes, and the last one, that is the process of publishing. So writing जो steps हैं writing process के उसमें there is pre-writing, and then we have drafting and self-revising, peer and adult revising, and then editing, and the last one, that is publishing. And now we'll discuss separately these different steps. Okay, like we'll first take pre-writing, what is pre-writing, and then move on to drafting and self-revising, and then peer adult revising and editing and publishing. Okay, so first
there we have pre-writing. Okay, so what is pre-writing? During pre-writing, the first step of writing, this is certainly the first step of writing process. Authors will generate ideas and put their thoughts in order. Okay, so this is what that happens in pre-writing process. So what is pre-writing? That authors, they generate ideas and put their ideas in order. Okay? कि आपने कोई भी एक टॉपिक लिया है पर्टिकुलर और उसके बारे में आप लिखना चाहते हो, तो फर्स्ट आप उस टॉपिक से रिलेटेड सर्टेन आइडियाज को जनरेट करेंगे. आगे हम बात करेंगे कि प्री राइटिंग में जो आइडियाज को जनरेट करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं. लेकिन एक टॉपिक है तो उससे अगर उससे रिलेटेड अगर आप आइडियाज को जनरेट नहीं करते तो आप उस टॉपिक को एक्सपेंड नहीं कर सकते, उसके बारे में ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं. तो जिस तरह से हम किसी टॉपिक के ऊपर इफ़ वी हैव टू स्पीक समथिंग और इफ़ वी हैव टू एक्सप्रेस आवर व्यूज, तो अगर हमने उस आइडिया से रिलेटेड फर्दर आइडियाज को जनरेट ही नहीं किया हुआ तो अल्टीमेटली वी वुड बी डम, वी वोंट बी एबल टू स्पीक. So here lies the definition that pre जो writing process है उसमें authors they generate ideas and put their thoughts in order. And then examples of pre-writing include, okay, कि pre-writing में हम कितना एक हो सकता है, pre-writing में कौन कौन से जो चीज़ें हैं जिनको हमने देखना होता है. So they say examples of pre-writing include anything from a sentence or two describing a project's organization to an extensive outline with references to where you will place notes. Okay, तो वो एक सेंटेंस से स्टार्ट होते हुए फर्दर आप अपने प्रोजेक्ट को क्या करते जाते हो, इनहांस भी करते जाते हो एंड ऑर्गेनाइज भी करते जाते हो, ताकि अल्टीमेटली आपने उसी प्री राइटिंग के जो स्टेप है उसको यूज करते हुए अपने फर्दर आइडियाज को बिल्ड करना होता है. तो प्री राइटिंग के लिए जो यूजेबल फॉर्मेट्स हैं, there are three. The first one is that is called bubbling, and second one is outlining, or third one is drawing or writing caption, cartoon, strip. Okay, so different तरह के जो फॉर्मेट्स है वो हम यूज करते हैं प्री राइटिंग के लिए. जरूरी नहीं है कि आप साइमल्टेनियसली इन तीनों फॉर्मेट्स को यूज करो. आप ये नहीं है कि आप बबलिंग का फॉर्मेट जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो साथ ही आपको आउटलाइनिंग का फॉर्मेट भी यूज़ करना पड़ेगा, या ड्राइंग या राइटिंग कैप्शन, कार्टून, स्ट्रिप, उसका भी. सो यू कैन चूज एनी वन ऑफ दम. लाइक अगर आपने राइटिंग प्री राइटिंग प्रोसेस के लिए आपने बबलिंग का जो फॉर्मेट है उसको आपने यूज़ किया है, सो इट इज़ ऑलराइट, यू कैन टेक इट. और सेकंड जो आपके पास आउटलाइनिंग, इनको भी फर्दर हम डिस्कस करते हैं. बबलिंग क्या है, आउटलाइनिंग क्या है और ड्राइंग क्या है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि राइटिंग प्रोसेस में हम चीज़ों को क्या करते हैं, हम अपने अपने आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसमें हमारे पास जो फर्दर स्टेप्स हैं राइटिंग प्रोसेस के अंदर, उसमें पहला स्टेप ये वो प्री राइटिंग है. प्री राइटिंग में हम आइडियाज़ को जनरेट करना और फिर उनको ऑर्गेनाइज करने के बारे में जो है वो सोचना है. वो आइडियाज़ की जो जनरेशन है वो एक सेंटेंस से लेकर फर्दर कई सेंटेंसेस के ऊपर हो सकती है. तो द फर्स्ट वन दैट इज बबलिंग इन प्री राइटिंग. तो ये जो बैनर है मेन, आप प्री राइटिंग का यूज करेंगे और उसकी ब्रांचेस बनेंगी, 3 ब्रांचेस. नंबर 1 बबलिंग, सेकंड वन इज आउटलाइनिंग, और फिर ड्राइंग. तो वो ड्राइंग में कार्टून स्टिक भी हो सकता है, दैट इज द पार्ट ऑफ दैट. तो ये जब आप इसको ब्रांचेस बनाएंगे तो आप इसको, आपने ये नहीं समझना कि बबलिंग और आउटलाइनिंग और ड्राइंग ये एक सेपरेट काइंड है राइटिंग प्रोसेस की. नो, बल्कि ये प्री राइटिंग के प्रोसेस के अंदर ही आती है. प्री राइटिंग के लिए जो आप स्टेप उठाते हैं उसमें इनमें से कोई एक तरीका आप प्री राइटिंग के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बबलिंग. तो many authors refer to this technique as a mind web, writing their topics in the center of the page, and students will circle it and connect related ideas like cartoon quote bubble. तो आगे मैं इसकी पिक्चर भी आपको दिखा दूंगा कि बबलिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है. तो मेजोरिटी ऑफ द राइटर्स इन द वर्ल्ड वो एक पेज लेते हैं, उस पेज के सेंटर में अपना जो मेन टॉपिक है वो लिखते हैं, और उस जैसे कि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, इसी वजह से हम इसको माइंड वेब भी कहते हैं. ओके, बबलिंग का जो प्रोसेस को कहते हैं माइंड वेब, या उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ भी आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन माइंड वेब ऑब्वियसली आप एक रिटन फॉर्म में बनाएंगे.
तो रिटन फॉर्म में क्या है कि आपने पेज के सेंटर में आपने एक टॉपिक को लिखा और फिर उसकी आपने वेरियस ब्रांचेस, नॉट सर्टेनली ब्रांचेस, वेरियस आइडियाज जो कनेक्टेड आइडियाज हैं उनको आप उसके साथ क्या करेंगे, अटैच करेंगे और वो एक आपके पास एक वेब नुमा चीज़ जो है वो बन जाएगी जिसमें एक आइडिया इट लीड्स टू अनदर, देन इट लीड्स टू अनदर और होल वेब दैट इज क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ यू। और आप उसको उस वेब में डिफरेंट तरह के आइडियाज होंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसमें से, लेकिन वो वेब जो है वो इंपॉर्टेंट है, बबलिंग नाम ये करते हैं। और उसके साथ नोटिस दैट द आइडियाज कैन बी इंटरकनेक्टेड। ये नहीं हो सकता कि आपने एक टॉपिक से रिलेटेड अगर आप सोच रहे हैं तो आपने वो आइडियाज भी उस टॉपिक में लाने की कोशिश की है जो इनका उनके साथ कहीं से भी लिंक नहीं है। So if there is no link, it means that the ideas they are not interconnected. तो बबलिंग में आपने जब एक टॉपिक को पेज के सेंटर में लिखना है तो अल्टीमेटली वो जो सराउंडिंग आइडियाज हैं उनको आपने क्या करना है, उनके साथ कनेक्ट करना है। ओके, वो जितने आपने वहाँ पे उस टॉपिक से रिलेटेड जो आइडियाज उस माइंड वेब में आपने क्रिएट किए, दे कैन बी और यू कैन से दे शुड बी इंटरकनेक्टेड। तो आप इंटरकनेक्ट उनको कैसे करेंगे जब आप पेज आपके सामने है? सो यूजिंग एरोज, ओके, स्टूडेंट्स और एनीवन, ओके, कैन लिंक टू फार अपार्ट आइडियाज। ओके, तो एरोज आप यूज करेंगे, इस आइडिया का ताल्लुक इसके साथ है, उसको उसके साथ है। परहैप्स इन देयर ड्राफ्ट one of these ideas will be the last sentence of the paragraph. Okay, और ये नहीं होगा कि कोई भी जो आइडियाज आपने जनरेट किए हैं हर एक आइडिया की इक्वल इंपॉर्टेंस है। हो सकता है कि एक आइडिया वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आइडिया जो सबसे आखिर पे आएगा, एक आइडिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो लेकिन उनकी जो लिंकेज है आप वहां पर क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। सो विल बी द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ एंड द आइडिया कनेक्टेड बाय एन एरो will form the first sentence of the next, क्रिएटिंग अ लॉजिकल फ्लो बिटवीन पैराग्राफ्स। ओके, तो वो आइडियाज जो है वो एरो के साथ जो कनेक्ट होंगे वो एक सेंटेंस से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक लीड करके ले जाएंगे और यही फ्लो डिफरेंट पैराग्राफ्स में क्या है चलेगा। हो सकता है कि एक आइडिया के ऊपर आप एक पैराग्राफ बिल्ड कर रहे हो और वहाँ पर जो आपने माइंड वेब आपने क्रिएट किया है वहाँ पर आपने डिफरेंट आइडियाज को 5 6 7 8 9 आइडियाज को आपने वहाँ पर लिखा है। तो अल्टीमेटली डिफरेंट आइडियाज डिफरेंट पैराग्राफ को लेके चलें, जैसे कि हमने स्टार्ट में पैराग्राफ में भी बात की कि एक पैराग्राफ यूजुअली एक आइडिया को क्या करता है, डिस्कस करता है। तो वो पैराग्राफ क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए, और वो जो कनेक्शन है वो आइडियाज के दरमियान कनेक्शन होगा। और माइंड वेब जब आपके सामने होगा तो अल्टीमेटली चीज़ें आपके लिए आसान होगी। अगर आपने माइंड वेब पर चीज़ें लिखी नहीं है, उसको रिटन फॉर्म में आपने नहीं लाया, तो हो सकता है कि बहुत से आइडियाज ड्यूरिंग थिंकिंग आपके माइंड में आए हों एंड यू हैव नॉट just taken them down. So ultimately what would happen, you would forget about those ideas, maybe that idea is precious one। इसीलिए आपने आइडिया को लिखना है। जब माइंड मैप आपने क्रिएट करना है, माइंड वेब आपने क्रिएट करना है, तो उसमें आइडिया को आपने लिखना है। एंड देन द बबलिंग टेक्निक इज जनरली द easiest of the three methods in which the brains in which to brainstorm many ideas, these thoughts। Okay, so be sure to demonstrate how bubble can become paragraphs। Okay, तो ये सबसे आसान टेक्निक समझी जाती है बबलिंग, क्योंकि इसमें आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक आइडिया आपके सामने है, आप यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट आइडिया एंड यू कीप ऑन जनरेटिंग आइडियाज रिलेटेड टू दैट idea and you keep on making that web। So ultimately what happens that most of the ideas they are very much connected with the main topic। और आपके पास जब वो वेब बन जाता है तो अल्टीमेटली उस वेब को सिर्फ आपने फिर ऑर्गेनाइज करना होता है कि इस आइडिया को मैंने फर्स्ट लिखना है, उसके बाद दूसरे आइडिया को लिखना है, तीसरे आइडिया को लिखना है। और दिस इज द वेरी फेमस टेक्निक जो बबलिंग की टेक्निक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक है, माइंड वेब की टेक्निक है। दिस इज द वेरी फेमस एंड द इजीएस्ट टेक्निक। और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जब भी उन्होंने कोई भी राइटिंग करनी हो तो वो इसी तरह के बबल्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। और अभी आप उसकी एक ग्लिम्स देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। So here we are. So bubble example. So look at the look at the central topic. Okay. So what is that? My brother's big fish. Okay. तो अब देखें कि अब इसमें ब्रांचेस हैं और कनेक्शन भी है आइडियाज के दरमियान। लाइक अगर आप देखें जो फर्स्ट आपके पास जो अपवर्ड जो लाइन जो है वो जा रही है उसमें लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया, साइट सीइंग क्रूज, ह्यूमरस, टीचिंग लिटिल
bro, how to fish, big brother, little brother, okay, jealous cause I cause couldn't catch anything, rivalry, okay. तो एक एस्पेक्ट इसका जो है ये हो सकता है, जैसे कि बिग ब्रदर्स और बिग ब्रदर्स बिग फिश, उसका वो एडवेंचर है। तो एडवेंचर कहाँ पे हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में साइट सीइंग जो है वो क्रूज पे वो लोग मौजूद हैं, बहुत सारे जोक्स वहाँ पर पास होते हैं। तो अल्टीमेटली जो यंगर ब्रदर है, जो लिटिल ब्रदर है, ही डज नॉट नो हाउ टू फिश, उसको जो बिग ब्रदर है वो सिखाता है कि मछली कैसे पकड़ते हैं, और यंगर ब्रदर उस मछली को पकड़ना नहीं सीख पाता ठीक तरह से, तो वो बिग ब्रदर से जेलस होता है, उनके दरमियान राइवलरी क्रिएट होती है। मींस दिस कैन बी वन एस्पेक्ट। उसके ऊपर आप एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ्स आप उसमें क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो ये उसकी अब मीन्स यू आर थिंकिंग अबाउट के somebody has gone with his elder brother, okay, or big brother somewhere, okay, so वहां पर उन्होंने मछली पकड़ी और उससे रिलेटेड आपके माइंड में क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं। तो अगर आप सेकंड ब्रांच को देखें जो आपको लेफ्ट पे नजर आ रही है, तो उसमें क्या है, ग्रुपर है 250 pounds and then 4 people to haul it abroad ugly, okay, so group of people, okay, they were there, and then उन्होंने जो फिश पकड़ी वो 250 पाउंड की वो फिश थी, एंड देन 4 लोगों को हेल्प करना पड़ी। यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट फिशिंग एक्सपीडिशन, और फिशिंग एक्सपीडिशन में आप आइडियाज को जनरेट कर रहे हो कि लोग इतने गए, उन्होंने मछली पकड़ी, मछली बहुत भारी थी, लुक्स वेरी मच अगली, ओके। और उसके साथ लिंक कि अगर आप लेफ्ट पे आ जाएं तो उसमें क्या है, so there is a drop line, and then bait with corn or hot dogs, कि फिश को आपने बेटिंग किस तरह से की, उसको पकड़ा किस तरह से आपने, okay, and then kite spool and running out of the string, and then could have lost it or offered to cut line, okay, वो और ये आइडिया उस आइडिया के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो फर्दर डिफरेंट आइडियाज जो आप उस बबलिंग से जनरेट कर रहे होंगे, वो डिफरेंट आइडियाज दूसरे आइडियाज से कनेक्ट होते जाएंगे किसी तरह से। जैसे कि यहाँ पर वो बेट किस तरह से की, लाइन खत्म हो गई, वो स्ट्रिंग जिससे मछली पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, और फिर उसमें ये सोचा उन्होंने कि लाइन को क्या कट कर दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, ओके, थॉट इट वाज स्नैग ऑन द रीफ until it moved for 2 hours, didn't want dad's help, okay, so on their own वो जो ब्रदर है वो फिश पकड़ने की कोशिश कर रहा था, 2 घंटे उसने फिश के साथ स्ट्रगल की। सो अल्टीमेटली यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ आइडियाज, और अगर ये आपने माइंड मैप, ये माइंड वेब अपने सामने अगर आपने क्रिएट किया हुआ है और इसकी इस तरह से ब्रांचेज और कनेक्टिंग आइडियाज आपने जोड़े हुए हैं, सो अल्टीमेटली इट वुड बिकम वेरी मच इजी फॉर यू टू enhance this writing process। ये प्री राइटिंग में अगर आप ये कर लेते हैं तो अल्टीमेटली आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं फर्दर। अगर आप प्री राइटिंग नहीं करते, विदाउट थिंकिंग अगर आप चीज़ों की तरफ जाते हो, अगर आप बबलिंग अप नहीं करते, ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आइडियाज को जनरेट नहीं करते, सो राइटिंग प्रोसेस वुड बिकम वेरी मच डिफिकल्ट। So pre-writing is very much necessary whenever you want to make your writing process successful, okay, और उसको पब्लिशेबल बनाना चाहते हैं तो ये चीज़ें। और हो सकता है ये जो आपके सामने माइंड वेब क्रिएट हुआ हुआ है, इसके साथ आप इत्तेफाक ना भी करें, आप अपने हिसाब से इसमें फर्दर एडिशंस भी कर सकते हैं, न्यू ब्रांचेस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक आप उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि वहाँ पे ट्रेजिडी होगी, बोट उल्टी होगी, उसमें भी वहाँ पे कोई जो है वो पार्टी ऐसी नहीं थी कि जो हमें रेस्क्यू कर सके वहाँ से, और हमने अपने ओन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, वो भी एक ब्रांच आप यहाँ पे क्रिएट वो कर सकते हो। या आप उसमें ये भी कह सकते हो कि फॉर 2 आवर्स हम स्ट्रगल करते रहे, फिश पकड़ी, लेकिन जो है वो फिश बूढ़े आदमी की फिश की तरह से बहुत भारी थी, तो हम उसको जो है वो हमारे लिए लाना कोस्टल एरियाज तक इम्पॉसिबल था। तो a lot of ideas can be generated regarding this particular central topic। तो ये है कि आप बबलिंग करते हो। सो बबलिंग क्या है, दैट इज द प्री राइटिंग प्रोसेस, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, और ये सबसे आसान तरीन भी है क्योंकि आप ब्रेन स्टॉर्म करके डिफरेंट आइडियाज जनरेट करते हैं, यू आर फ्री टू जनरेट आइडियाज, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव another pre-writing process that is called outlining. So outlining is the most directed and specific of the 3 methods of pre-writing, okay। तो ये बहुत specific है और इसमें बहुत meticulous आपको रहना पड़ता है, और
और आपने इसमें, क्योंकि बबलिंग में आपके पास क्या है, यू हैव अ फ्रीडम के उसमें कुछ ऐसे आइडियाज भी आप वहाँ पर लिख दें कि जो अल्टीमेटली आप उनको समझे कि दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, तो जस्ट लीव देम आउट। सो आउटलाइनिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आउटलाइनिंग में यूजुअली आपके पास जो स्पेस है वो बबलिंग के मुकाबले में कम होती है। यहाँ पर आप जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं चीज़ों के बारे में। तो स्पेसिफिक of the three methods of free writing. In outlining, students describe the function and contents of each paragraph and their writing by organizing ideas into topic sentences and supporting details. Okay, so students क्या करते हैं, वो कंटेंट को डिफरेंट पैराग्राफ्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, उन पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंसेस देते हैं और उन टॉपिक सेंटेंसेस को करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये हम पहले भी जो पैराग्राफ राइटिंग थी वहाँ पर हमने बात की थी कि किस तरह से टॉपिक सेंटेंसेस के साथ हम सपोर्टिंग आइडियाज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो and then once a student organizes his or her ideas in outline form, he or she is likely to have a few difficulties moving to a usable draft in paragraph form. However, drafts from strict outline have the tendency at first to sound like a grocery list with little flow. Okay, so जब आप वो ये बना रहे होते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं आउट ऑफ आउटलाइनिंग आपने की और उसमें से ड्राफ्ट आपने प्रिपेयर किया, ऐसे लगेगा कि आप कोई चीज़ लिस्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि घर से आपको ग्रोसरी लिस्ट जो वो मिली है तो आप उसको पढ़ते जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इसी तरह से 1 2 3 के साथ आप डिफरेंट पैराग्राफ्स आप एडिशन उसका कर रहे हैं। तो लेकिन अल्टीमेटली जब उसको आप ड्राफ्ट में लेके जाएंगे, फ्री राइटिंग को ड्राफ्ट में लेके जाएंगे, तो वहाँ पर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आउटलाइनिंग की जो एग्जांपल है वो भी मौजूद है और इसमें आप अगर देखें तो बेसिकली वही चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं जो हमने पैराग्राफ राइटिंग में देखी। लाइक यहाँ पर जो हमारे पास जो टॉपिक है यहाँ पे वो कहता है कि द गोल ऑफ माई पेपर इज टू टेल। ओके, सो आपने द गोल ऑफ माई पेपर इज टू, ओके वो क्या है, इज टू टेल रीडर्स अबाउट थॉमस जेफरसन एंड द चैलेंजेस ही फेस्ड एज प्रेसिडेंट। ओके, ये आपने जो बताना है। सो सेकंड क्या, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द पर्सन हु विल रीड your writing. So hopefully kids my age who read cricket magazine, because when I'm done I will submit it. Okay, so here list the details you will use in your introduction to interest readers. Okay, तो यहाँ पर आप वो अपने इंट्रोडक्शन में कौन सी चीज़ें आप ऐड करेंगे, आप आउटलाइनिंग कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट बात की कि टॉमस जेफरसन और उसके चैलेंजेस उसने जो फेस की है प्रेसिडेंट, तो आप क्या लिखते हैं, Thomas Jefferson was a slave owner, but also believed that all men are created equal. He made Louisiana Purchase, which more than doubled the size of the United States. His enemy Alexander Hamilton actually helped to get him elected. Okay, तो अब उसने ब्रीफ आपने दे दिया, अब इन्हीं ये जो आपने यहाँ पे आउटलाइन किए आइडियाज, इन्हीं को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, कि टॉमस जेफरसन स्लेव ओनर कैसे था और फिर उसका ये जो नोशन बदला, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, इसमें जो आपस में डाइकोटमी है वो क्या पाई जा रही है और इनमें किस तरह का रिलेशन है और ये किस तरह से उसकी आइडियाज बिल्ड हुए, आप इस फर्दर इसको आप इन्हांस कर सकते हैं इस आउटलाइन में जो एक लाइन आपने लिखी होती है। जैसे कि आप एसेज, मोस्ट ऑफ द एसेज जो सीएसएस में भी होते हैं उसमें भी आपने आउटलाइनिंग करने के बाद उस प्रोसेस में जाना होता है कि जहाँ पर आप ये उनको डिटेल में क्या कर सकें, बता सकें चीज़ों को। लेकिन जितनी आउटलाइन आपकी स्ट्रांग होगी उतना ही आपके लिए आसानी होगी आइडियाज को क्या करने की, जनरेट करने की। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पर यू कैन जस्ट रीड ऑन योर ओन कि किस तरह से एक मेन आइडिया है, मेन आइडिया के साथ जो है वो उस मेन आइडिया से रिलेटेड, जैसे कि लुइसियाना परचेज की हमने बात की, इलेक्शन ऑफ 1800 की। ओके, तो वो मेन आइडिया हो गया, मेन आइडिया के साथ आगे डिटेल्स ऐड हो रही हैं, इन्हीं डिटेल्स को थोड़ा सा आप एक्सपेंड करेंगे तो कंप्लीट एक पैराग्राफ आपके सामने जनरेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आउटलाइनिंग जो है वो ये कर देगा, आप मेन आइडिया लिखते हो एक और उसके साथ सपोर्टिंग आइडियाज उसके एक सेंटेंस में या फ्रेजेस में आप सपोर्टिंग आइडियाज लिख देते हो, फिर उन सपोर्टिंग आइडियाज को आप जनरेट करते हो किसकी फॉर्म में, एक एसे की फॉर्म में आप उसको जनरेट करते हो। ओके, so this is the example of outlining. The second set
इन प्री राइटिंग स्टेप, आप इसको कह सकते हैं या आप इसको ये कह सकते हैं कि सेकंड काइंड ऑफ प्री राइटिंग। सेकंड काइंड इस लिहाज से कि आप एक प्री राइटिंग आप कर सकते हैं बबलिंग के थ्रू, आप एक प्री राइटिंग आउटलाइन एग्जाम्पल के थ्रू आप कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वी हैव कार्टून स्ट्रिप, और ये यूजली जो अडल्ट आप कह सकते हो कि लर्नर्स हैं उनके लिए नहीं है, ये जो बिगिनर्स हैं उनके लिए यूज़ होता है, और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं प्री, आप कह सकते हो कि उसमें सेकेंडरी स्कूल तक या प्राइमरी स्कूल तक के उनके लिए आमतौर पे ये कार्टून स्ट्रिप्स वो यूज़ होती हैं, ताकि वो उस कार्टून को, उस पर्टिकुलर पिक्चर को देखें और उस पर अपनी राइटिंग को क्या करें, जनरेट करें। तो ये भी एक प्री राइटिंग का प्रोसेस है कि पिक्चर्स आपके सामने चीज़ों की उनको आपने ऑर्गेनाइज करना है। ओके, सो especially in the early grades and for students with emergent organizational skills, pre-writing in the form of a picture by picture comic strip can be useful. Okay, so this is what Harrington says. Not only will students define the flow of events in their piece, but they may also be motivated by enjoying the process. अब आम तौर पे जो हमारे पास बच्चे हैं उनके लिए ये जो काइंड है प्री राइटिंग की उसको यूज़ किया जाता है। उसका बेनिफिट क्या होता है कि बच्चे ज़्यादातर पिक्चर्स में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, तो अगर उनको वैसे अगर आप एक आउटलाइन के लिए स्टोरी दे दी जाए कि ये आपने ये चीज़ें और इन पर आपने स्टोरी बिल्ड करनी, जिस तरह से हमने पहले अभी देखा आइडियाज़ के, एक लाइन लिख दी और आगे उसे कहा कि डिटेल्स को ऐड करे, तो हो सकता है कि उसके लिए उन डिटेल्स को इन्हांस करना मुश्किल हो। तो जब पिक्चर्स उसके सामने होंगी तो वो उस प्रोसेस को एंजॉय भी करेगा और अल्टीमेटली उसके बारे में लिखेगा भी। और यहाँ पे साथ ये भी है कि आमतौर पे ये जो टेक्निक है वो स्टोरीज वगैरह में चलती है, क्योंकि जो डिफरेंट आइडियाज़ को आपने जॉट डाउन करना होता है तो वहाँ पे तो रिलेटेड पिक्चर्स आप नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर जब स्टोरी या कुछ भी लिखना हो, आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो भी हमारे पास मॉरल स्टोरीज है वो उनको पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट किया जाता है और फिर कहा जाता है स्टूडेंट्स को कि उस पर स्टोरी को बिल्ड करें। तो दिस टेक्निक इज स्पेशली अप्रोप्रिएट फॉर नरेटिव और फिक्शन राइटिंग। ओके, तो ये उसकी एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने आ गई जो कार्टून स्क्रिप्ट है उसकी। तो यहाँ पे आप स्टार्ट में देखेंगे वी गेट अप in the morning and get ready for work. The dog looks nice and well behaved, and then we go out, we go out the door and wave goodbye. The dog sleeps until he is sure that we are gone. Okay, so ये अब इसमें किस तरह से आपने कुछ आइडियाज दिए भी हुए हैं, साथ पिक्चर्स भी हैं, आप इन पर खुद से भी आइडियाज को बिल्ड भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी स्टोरी को बिल्ड कर सकते हैं। पिक्चर्स को देख के आपको लगे कि ये जो लिखा हुआ है इससे डिफरेंट भी स्टोरी बिल्ड हो सकती है, सो दैट इज ऑन। सो अल्टीमेटली ये चेक करना होता है कि किस तरह से एक राइटिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया जा सकता है। एंड देन वी हैव द सेकंड step और सेकंड स्ट्रेटजी ऑफ राइटिंग प्रोसेस, दैट इज ड्राफ्टिंग। ओके, अब आपने अपनी प्री राइटिंग कर लिया, आपने बबलिंग कर लिया, अपनी आउटलाइनिंग कर ली, तो आगे आपके पास आ जाएगा राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप दैट इज ड्राफ्टिंग। सो ईच use of the writing process is likely to take most students a similar amount of time, although the steps on which they spend their time may vary. Okay, आमतौर पे ये होता है कि हर स्टेप पे एक प्रॉपर टाइम लगता है, ये नहीं हो सकता कि आप जंप करते जाएं hurriedly from one step to another। अगर आपने ज़्यादा अच्छा टाइम दिया है प्री राइटिंग पे तो हो सकता है कि आपको ड्राफ्टिंग पे कम टाइम लगे, और अगर आपने प्री राइटिंग पे कम वक्त दिया है, आपने उसको प्रॉपर वे में अटेम्प्ट नहीं किया, तो फिर आपका ड्राफ्टिंग पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अल्टीमेटली ये वक्त जो है इन डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम ही लगता है। ओके, फॉर एग्जांपल if students spend time on their pre-writing, they will gain it back while drafting। अगर प्री राइटिंग पे ज़्यादा टाइम दिया है तो ड्राफ्टिंग पे कम टाइम लगेगा, तो वो टाइम क्या हो जाएगा, that would be you can say in a way returned। okay, so वो टाइम सेव हो जाएगा उनके लिए। so if they rush through the pre-write, so they may take longer to draft। okay, so this happens कि अगर आप प्री राइटिंग में जल्दी जल्दी आपने किया तो ड्राफ्टिंग में आपको समझ नहीं आ रही, so this is to be expected। so some students will fly through the planning stage of their writing, giving it the minimum required effort and nimbly inserting ideas on the fly as they draft,
others will agonize over their pre-write and view the draft as filling of the blanks of an organized outline. ओके, तो कुछ जो है वो जल्दी जल्दी प्री राइटिंग करते हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ पे ड्राफ्ट पे जाके दे जस्ट स्टिक समवेयर। तो कुछ जब प्री राइटिंग में बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं तो ड्राफ्ट में ये लगता है कि वी आर जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, हर चीज़ तो पहले ही हुई हुई है। So both approaches have their advantages and disadvantages. So आप pre-writing में ज़्यादा focus करें या drafting पे, so that is so, and then there are the two requirements. Drafting need not be perfect writing. आपने ये नहीं समझना कि drafting जो आपकी होगी आपने उसको perfect writing के तौर पे क्या करना है, present करना है। Drafting cannot be the perfect writing, क्योंकि अभी तो writing के और भी process वो रहते हैं। ओके, सो क्योंकि वट एवर इज कमिंग आउट ऑफ योर पेन, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो लिखा है वो 100% करेक्ट हो, बल्कि आपको पता है कि कुछ वर्ड्स हैं मिस स्पेल्ड हुए होंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें आपने ड्राफ्टिंग में कहेंगे कि जो अल्टीमेटली क्या होगा उसमें, उसको डिफरेंट वे में भी कहा जा सकता है, उसको बेटर वे में भी कहा जा सकता है। हो सकता है कि पंक्चुएशन के अच्छी ना हो आपकी, और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि जो ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं तो दे कैन नॉट मूव जब तक वो उसको सही ना करें। लेकिन अगर ड्राफ्टिंग में कुछ कमियां रह भी जाती हैं तो नो प्रॉब्लम, आप फर्दर जब उसको ड्राफ्टर्स को ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्शनिस्ट भी हों, और सम ऑफ द राइटर दे जस्ट कंसीडर कि अगर वो ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं करेंगे तो ऐसे लगेगा कि उनके अंदर राइटिंग एबिलिटी नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप ड्राफ्टिंग में आपकी जो गलतियां वो रह जाती हैं, तो व्हेन एवर यू विल कम टू रिवीजन और अदर स्टेप्स ऑफ राइटिंग प्रोसेस, तो वहाँ पे आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। और इसी तरह से सेकंड जो, तो आपने ये नहीं समझना कि ड्राफ्टिंग जो है वो मैंने परफेक्ट ही करनी है और उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग में अगर कोई गलतियां रह जाती हैं तो फर्दर आप उसको रिवाइज करके चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। प्रूफ रीडिंग का भी प्रोसेस है, डेटिंग का प्रोसेस है। तो अगर आपने पब्लिशेबल एक बेस्ट राइटिंग बनानी है तो इस प्रोसेस में से आपको गुजरना होगा। सो ड्राफ्टिंग नीड नॉट बी परफेक्ट राइटिंग। एंड द सेकंड वन, ड्राफ्टिंग इज साइक्लिक और साइक्लिकल। ओके, सो साइक्लिक और साइक्लिकल किस तरह से है कि जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट को जो है वो ये कहना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि आप बार बार एक चीज़ को क्या करते जाएं, रिवाइज करते जाएं। और अगर उनके, क्योंकि हो सकता है कि ड्राफ्टिंग के दौरान फर्दर उनके माइंड में बेटर आइडियाज़ आए, तो वहाँ पर वो साथ में उसको एम्बेड कर सकते हैं और बाद में आके उनको फर्दर एम्बेलिश भी कर सकते हैं, उनको फर्दर बेटर बना सकते हैं। तो ये जो प्री राइटिंग के प्रोसेस के बाद जो ड्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो इसी तरह से है कि आप ऐसे ही है जैसे कि एक रोड पे आप चल रहे हैं, तो हो सकता है कि एक मंजिल पे आपने पहुंचना है, तो उसमें एक रोड पे आप जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है, सो यू हैव टू चेंज द वे। तो ड्राफ्टिंग करते हुए हो सकता है कि वे आपको अच्छा ना लगे, ये ठीक नहीं है बात कहने का तरीका, दूसरे के आप तक चले जाएं, और जब आप उसे रिवाइज कर रहे हो चीज़ों को तो आपको लगे नहीं ये भी तरीका ठीक नहीं है, किसी दूसरे वे को हम क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट जो वो कर लेते हैं। सो अल्टीमेटली दैट इज नॉट व्हाट वी कॉल द अल्टीमेट थिंग कि ड्राफ्टिंग जो है वो आपने कर दी तो ये फाइनलाइज है। तो आप बार बार रेकरिंग उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप बार बार उसमें आते रहेंगे और उसको आप चेक करते रहेंगे। दैट इज व्हाई ड्राफ्टिंग इज cyclical. And then we have the third step, that is called revising. So what is revising? Revising is often neglected in the writing process, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ड्राफ्टिंग कर लेते हैं वो ये समझते हैं कि बस ठीक है, दैट इज ऑल ओवर, और हमने बेस्ट लिख दिया है और वी आर द परफेक्शनिस्ट, हमने जो लिखा वो ठीक लिखा है, सो दे डू नॉट बॉदर टू रिवाइज। तो कोई भी जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, किसी भी तरह की जो आपकी एजुकेशनल असाइनमेंट है, किसी भी तरह की जो रिपोर्ट है, उसमें nobody व्हाट वी कॉल इज परफेक्ट। ओके, तो वो जो परफेक्शन है वो द पैस ऑफ टाइम आती है, जितना आप रिवाइज करेंगे उतनी आप बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। I mean, it is said about Hemingway, the great writer, means he is considered to be the uh, legend of, you can say, writing.
और वो अपने राइटिंग स्टाइल की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड वो मशहूर था। और उसके बारे में ये कहा था कि यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ रिवीजन्स टू हिज राइटिंग, वो रिवाइज करता रहता था। और कई बार ऐसे होता था कि होल पैराग्राफ उसको वो रिवाइज करते करते एक सेंटेंस तक उसे वो ले आता था। तो रिवाइजिंग जो है वो निगलेक्टेड पार्ट होता है आमतौर पे किसी भी राइटिंग प्रोसेस में, कोई भी रिसर्च आप कर रहे हैं। So students often feel that they have already written the paper and they see any extra work as such as revising as just that extra work. वो कहते हैं हमें फजूल सा काम है, there is no need to write, there is no need to revise certain things, हमने लिख दिया बस, जो हमारा लिखा है वो ठीक है। ओके, तो मुस्तनद है हमारा फरमाया हुआ। लेकिन ऑब्वियसली वी आर नॉट ऑल मंटोज, तो ये मंटो ही था कि जो अपनी लाइन को लिखने के बाद जो है वो शायद दोबारा से उसको काटता नहीं था, उसकी दोबारा से रिवीजन या ड्राफ्टिंग शायद नहीं करता था। मीन इट इज सेड अबाउट मंटो, लेकिन वी आर नॉट ऑल मंटो। सो हमने जब भी एक राइटिंग प्रोसेस जो है वो करना होता है तो हमने उसको रिवाइज करना होता है। सो रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट, रिवीजन से आपकी बहुत सी गलतियां पकड़ी जाती हैं। जैसे कि आप पेपर जब आप अटेम्प्ट करते हो तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स एंड योर पेरेंट्स दे से टू यू कि भाई अपने पेपर को आखिर पे 5-10 मिनट में जरूर पढ़ना है, उसमें बहुत सारी गलतियां पकड़ी जाती हैं। सो रिवीजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So in revising lies the greatest potential for learning. When you revise, you learn. By revising, students learn techniques to make their writings better, techniques that they can apply the next time they draft. Okay, so एक जब आप रिवीजन करते हो तो आप अपनी गलतियां जब आप पकड़ते हो तो अल्टीमेटली जब आप नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट ड्राफ्टिंग करोगे तो वो एटलीस्ट मिस्टेक्स आप नहीं करोगे। आप न्यू मिस्टेक्स सब कर सकते हैं, यू आर अलाउड टू डू दैट, लेकिन आप पुरानी मिस्टेक्स को दोहराएंगे नहीं। और अगर आपने रिवीजन की नहीं तो आपको यही नहीं पता कि मेरी पहले वाली राइटिंग में किस तरह की मिस्टेक्स थी और मैंने उनको ओवरकम किस तरह से करना है। सो रिवीजन जो है वो ना सिर्फ उस पर्टिकुलर राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि रिवीजन आने वाले राइटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक अच्छी रिवीजन करते हो तो आने वाले वक्त में आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो क्या होती जाएंगी, वो मिस्टेक्स जो वो डिक्रीज होती जाएंगी, उनके नंबर ऑफ मिस्टेक्स कम होता जाएगा आपके लिए। और आप क्या पता कि एक वक्त आए कि आप यही रिवाइजिंग रिवीजन करते हुए चीज़ों की आप एक परफेक्ट ड्राफ्टिंग में या परफेक्ट हो जाए। ओके, सो स्टूडेंट्स विल सी, अब जब आप वो कंपेयर करेगा दोनों वर्जन्स को कि जो रिवीजन के बगैर था रिवीजन वाला, सो ही विल सी बिफोर एंड आफ्टर वर्जन्स, एंड बाय कंपेयरिंग द टू they will demonstrate to themselves the specific elements they make for a better piece of writing. So अपने आप को ही वो समझा लेंगे कि अच्छा एक अच्छा piece of writing ऐसे करना है, ये मिस्टेक्स थी मेरी, मैंने इनको ओवरकम किया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई से टू माय स्टूडेंट्स, जब वो कहते हैं कि पेपर तो हमने सही लिखा था, तो जब वो लिखते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप खुद अगर अपनी राइटिंग को देखें एक दफ़ा फिर, तो आपको लगेगा कि आपने काफ़ी सारी मिस्टेक्स खुद ही आप पकड़ लेंगे उसमें से, अपनी राइटिंग में से। तो ये है कि रिवीजन का, दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ रिवीजन। तो यहाँ पे जब आप रिवीजन जो है वो कर रहे होते हैं तो सर्टन इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना होता है। आइडियाज़ व्हेन टीचिंग स्टूडेंट्स टू रिवाइज देयर वर्क, तो क्या करना, टीचर्स ने क्या करना होता है या स्टूडेंट्स ने किन चीज़ों को माइंड में रखना होता है। तो अल्टीमेटली जो रिवीजन के हैं वो मैकेनिक्स हैं, सर्टन मैकेनिक्स ऑफ रिवीजन, तो वो किस तरह से उन मैकेनिक्स को आपने अडॉप्ट करना है। सो टीचर्स जो हैं उन्होंने स्टूडेंट्स को सिखाना है कि रिवीजन की क्या मैकेनिक्स हैं, और स्टूडेंट्स ने उन मैकेनिक्स को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो जो अब मैकेनिक्स में जो पहला मैकेनिक हमने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स हैं जब वो रिवीजन कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो रिमार्क्स हैं वो डायरेक्टली उस ड्राफ्ट के ऊपर बना देते हैं। मीन्स कि जो भी चेंजेस करनी होती हैं उस ड्राफ्ट के ऊपर कर देते हैं, और वो कहते हैं कि बाद में हम इसको देख लेंगे और हम उसको ठीक कर लेंगे। और दूसरा जो स्टूडेंट्स है वो आमतौर पे क्या करते हैं कि वो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं कि जहाँ पे वो रिवाइज करके चीज़ों को क्या करते जाते हैं, लिखते जाते हैं। और एक और ये है कि जैसे कि अगर स्टूडेंट जो है वो रिवाइज कर रहे हैं उसको एक कंप्यूटर की डिफरेंट फाइल बना लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि उन दोनों वर्क्स में किस तरह का डिफरेंस है। तो आपने वो तरीका अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है कि जो आपके लिए आसान तरीन हो रिवीजन के लिए। ये ना हो कि आपका जो एक्स्ट्रा वर्क है वो बढ़ता जाए, कि आपने दो डिफरेंट आप कह सकते हो कि स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर लिए, दो डिफरेंट ड्राफ्ट आपने प्रिपेयर कर लिए, उनको आप
रिवाइज कर रहे हो। अब ये नहीं आपको समझ लग रही कि इस वाली मिस्टेक्स उधर किधर हैं और इधर वाली, बल्कि आप कोशिश करें कि और दूसरा ये कि अगर आपने एक ड्राफ्टिंग की है और उस पर आपने मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया है, और मिस्टेक्स को इस तरह से पॉइंट आउट करें जो लिजिबल हो, पढ़ी जा सके। ये ना हो कि बाद में 4 दिनों के बाद आप अपनी ड्राफ्टिंग को जो आपने रिवाइज की वो देखें तो आपको समझ ही ना आए कि मैंने इसमें से क्या मिस्टेक निकाली थी, या किसी और टीचर को या अपने पेरेंट्स में इसको देते हैं कि ये चेक कर दें मैंने ये गलतियां निकाली हैं तो ठीक निकाली हैं, तो आपकी राइटिंग वहाँ पे लिजिबल ही ना हो। और फिर फर्दर आपका तो वो ड्राफ्ट भी एक तो बना हुआ खराब हो जाए, और दूसरा ये है कि आपके उस लिखने को कोई फायदा भी ना हो। तो लिखना जो भी आपने वहाँ पर है उसकी उसको इस तरह से लिखना है कि मिस्टेक क्या है वो भी पता चलनी चाहिए, और मिस्टेक की जो करेक्शन हुई हुई है, जो आपने की है करेक्शन, वो भी प्रॉपर समझ आनी चाहिए कि अच्छा मैंने पहले ये लिखा था अब मैंने ये लिखा और इन दोनों में क्या है, इस तरह की क्या है चेंजेस। तो ये जो ड्राफ्टिंग है मेरा ख्याल है कंप्यूटर पे जब आप कर रहे होते हैं तो एक वो फाइल कि जो आपकी आपका जो ड्राफ्ट है, और एक वो फाइल आप बना लें कि जहाँ पे आप क्या करते हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो उस फाइल से आप देखते जाएं, और इधर रिवाइज कॉपी पेस्ट आपने किया हुआ है तो रिवाइज करके उसको आप क्या करते जाएं, चेक करते जाएं। तो लास्ट पे आपको दोनों का डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एंड देन students need specifics, okay? So specifics क्या है कि वो आमतौर पे बच्चे जो है वो children they tend to overestimate their and others comprehension of the text, and they do not identify specific areas of the text that could benefit from revision, okay? So वो ये समझते हैं कि दूसरों ने ये मैंने एक दफा देख लिया तो दैट इज ऑल राइट। तो स्पेसिफिक्स के ऊपर कि किन किन एरियाज में ज्यादा मिस्टेक्स हो सकती हैं वो उन पर पहले उन्हें फोकस करना चाहिए, ओके? और उसके साथ जो है वो वन थिंग एट अ टाइम, कि अगर आप पहले ये भी गुड राइटिंग की एक ट्रेट है कि एक चीज को एक दफा, जैसे कि आप सबसे पहले देख रहे हैं कि मैं देखूंगा कि मेरी वर्ड चॉइस ठीक है या नहीं, वर्ड्स को आप रिप्लेस कर रहे हैं, उनकी जगह पे नए नए वर्ड लाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ वर्ड्स अच्छे नहीं है तो आप सिर्फ वर्ड्स को देखें, फिर आप उसमें ग्रामर या उन चीज़ों को देखने की आप कोशिश ना करें। इसी तरह से अगर आप उसमें वर्ड चॉइस के अलावा अगर आपने जो है वो किसी तरह से अपनी राइटिंग को बेटर बनाने के लिए अगर आप उसमें देख रहे हैं कि उसमें मैंने कैपिटलाइजेशन ठीक की है या नहीं की, मैंने वहाँ पे फुल स्टॉप ठीक लगाया या नहीं लगाया, तो एक चीज को एक ही बार में देखना है, मीन के पूरे डॉक्यूमेंट में से, जैसे कि आप रेफरेंसेस को देख रहे हैं कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट में ठीक तरह से रेफरेंसेस की है या नहीं की, तो आप सिर्फ रेफरेंसेस को ही देखते जाए, ओके? कोटेशन आपने ठीक तरह से पुट की है या नहीं की, क्वेश्चन मार्क्स ठीक लगाए या नहीं लगाए, तो वो आप एक पर्टिकुलर चीज को देखते जाएंगे तो वो आपके लिए आसानी होगी। साइमल्टेनियसली सारी चीजों पर आपकी नजर जो है वो क्या होगी, मुश्किल होगी, और आपके लिए चीजों को जो हैंडल करना है वो मुश्किल हो जाएगा। And then next thing is make the distinction between revising and proofreading. So proofreading is something different. Proofreading जो है वो क्या है, वो टेक्निकल चीज है, और जो राइटिंग है रिवाइजिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो प्रूफ रीडिंग है वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में क्या कि जब आप कन्वेंशनल जो नीड्स होती हैं किसी भी राइटिंग की उसको आप देख रहे होते हैं, तो कन्वेंशनल नीड्स कौन सी होती हैं? कन्वेंशनल नीड्स होती हैं कि आप जिस जगह पर अपनी राइटिंग को भेज रहे हैं उनका फॉर्मेट क्या है, वो किस तरह का फॉर्मेट एक्सेप्ट करते हैं, उसमें मैंने फॉन्ट कौन सा रखना है, वो जो रेफरेंस के लिए कौन सा जो स्टाइल है वो मांग रहे हैं, एपीए मांग रहे हैं, एमएलए मांग रहे हैं, कौन सा मांग रहे हैं, वो जो कन्वेंशन है उसको जब वो फॉलो करते हो तो ज्यादातर प्रूफ रीडिंग में वो चीजें आती हैं। रिवाइजिंग में जो है वो ये चीजें आमतौर पर हम जो होते हैं ना कन्वेंशनल जो एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी राइटिंग के, क्योंकि कन्वेंशनल एस्पेक्ट नेसेसरी हैं, क्योंकि हर एक तरह का जो रिसर्च जर्नल है उसके अपने कन्वेंशन होते हैं और उन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, तो आप वो प्रूफ रीडिंग में आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपने ज़्यादातर फोकस जो है वो रिवाइजिंग जो है वो इट इज़ सर्टनली डिफरेंट, क्योंकि रिवाइजिंग आप कर रहे होते हैं कंटेंट की। जो प्रूफ रीडिंग होती है या एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग या एडिटिंग आगे हम उस पर बात भी करेंगे,
प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग जो होती है वो it is for conventions. Okay, so you can say कि अगर if somebody asks you the difference between revising and proofreading, so you can say revising is for content, जो मैंने लिखा है, जो मेरा content है, और जो while proofreading और editing is for conventions. Okay, so conventions जब आमतौर पे क्या होते हैं, जो conventions हैं वो they are used in a draft. Okay, so they allow the material to be readable. Okay, so आपने यहाँ पे और दूसरा जो है वो प्रूफ रीडिंग में आमतौर पे आप उसमें वो जो कन्वेंशंस देख रहे होते हो उसमें आप कंटेंट पर ज़्यादा फोकस नहीं करते कि कंटेंट क्या है, उसको वो किस तरह से जोट डाउन किया गया है, उन चीज़ों को कैसे लिखा गया है. ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज सेड दैट स्टूडेंट्स विल रिवाइज ओनली फॉर कंटेंट इन दिस स्टेप. स्टूडेंट क्या करेगा, कंटेंट को रिवाइज करेगा रादर देन प्रूफ रीडिंग फॉर स्पेलिंग और ग्रामर. स्पेलिंग और ग्रामर या उनको प्रूफ रीडिंग, वो प्रूफ रीडिंग के प्रोसेस के लिए उनको क्या करेगा, छोड़ देगा. ओके, so and then there is peer or parent revising. Okay, giving specific. Okay, so आपने फिर रिवीजन ना सिर्फ खुद करनी है बल्कि अल्टीमेटली आपने रिवीजन में अपने से जो आप कह सकते हैं कि आपके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे भी कहना है कि वो आपकी रिवाइज चीज़ों को देखें और उस पर उनकी जो सजेशन देना चाहते हैं वो दे दें. क्योंकि हो सकता है कि आप समझ रहे हो कि आपने जो लिखा है वो ठीक है और उसमें किसी तरह का कोई मसला नहीं. तो वो जो आपके पेरेंट होंगे या जो पीयर रिवाइजिंग होगी उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपने जो कन्वे किया वो ठीक किया या नहीं किया, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने वो ठीक कन्वे किया है. हो सकता है कि वो रीडिंग करते हुए कहें कि ये सेंटेंस जो है वो ठीक तरह से बात नहीं कन्वे कर रहा, इसको आप देख लें, दोबारा से इसको रिविजिट कर लें, रिफ्रेज कर दें सेंटेंस को. तो दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो क्योंकि आपकी जो रिवीजन है वो तो आप अपने हिसाब से देखेंगे, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से देखेंगे. अगर दूसरा आदमी आपकी उस ड्राफ्ट को रिवाइज करेगा या उसको देखेगा तो वो अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको देखेगा. एंड देन प्रिपेयर स्टूडेंट टू गिव ईच अदर कमेंट्स. ओके, ये भी एक अच्छा प्रोसेस है. स्टूडेंट्स आपस में डिफरेंट तरह की जो ड्राफ्ट्स हैं वो आपस में शेयर कर लें. एक स्टूडेंट दूसरे का ड्राफ्ट चेक कर रहा है, दूसरा पहले वाले स्टूडेंट का ड्राफ्ट वो चेक कर रहा है. तो अल्टीमेटली क्योंकि उनकी अप्रोच और चीज़ों की तरफ जो उनका उनका जो बेंड है वो डिफरेंट है, तो उसकी वजह से वो एक दूसरे की जो मिस्टेक्स को जब पॉइंट आउट करेंगे तो एक तो उनके एक्सपीरियंस में भी इजाफा होगा और दूसरा नॉलेज भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे और एक दूसरे की मिस्टेक्स के बारे में भी जान जाएंगे. तो इनकॉर्पोरेटिंग रिविजन, और आमतौर पे क्या होता है कि रिविजन तो लोगों को बता दी जाती है. So teachers, they tell about the revisions, or the supervisors, they tell about the revisions. So what happens, the student they ignore those particular points. वो कहते हैं ये यहाँ पर ऐड कर लें, ये चेंजेस कर लें, तो वो इनकॉर्पोरेट ही नहीं करते अपनी राइटिंग के अंदर. तो वो इट मीन्स कि आपने जो राइटिंग प्रोसेस में एक पर्टिकुलर स्टेप था वो आपने मिस कर दिया है. कि एक इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको कहा गया था कि सर्टेन रिविजन आप करें और आपने उसमें नहीं की, तो आप अपनी ही राइटिंग को वीक कर रहे हैं. एक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी राइटिंग को वीक कर रहे हैं. सो दैट इज वाई ये चीज़ें राइटिंग में हम देखते हैं. सो लास्ट वन वी हैव नॉट द लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन में हमारे पास पब्लिशिंग आ जाएगी. सो हियर मींस what is proofreading. So why proofreading is important? So these writers, they just say young children learn to spell best when they are taught repertoire of effective strategies in a meaningful context. Okay, so इफेक्टिव स्ट्रेटजीज इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वो लर्न बेस्ट करते हैं. तो अगर आप उनको ये कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे तो उनकी राइटिंग का जो राइटिंग जो प्रोसेस है वो क्या होगा, बेटर होगा. सो ऑथर्स हु राइट without a command of conventions will have difficulty getting their work taken seriously. But conventions, the be all and end all of strong writing. Okay, so our conventions, so certainly sorry for that, but our conventions the be all and end all of strong writing. तो स्ट्रॉन्ग राइटिंग वाकई कन्वेंशन को फॉलो करती है या नहीं करती, क्वेश्चंस तो है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द राइटर्स इन द वर्ल्ड वो इन कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं. आप किसी भी जगह पे अपना कोई रिसर्च आर्टिकल भेजते हैं, किसी भी मैगजीन में आप भेजते हैं अपनी लिखी हुई चीज़, आप कोई बुक पब्लिश करते हैं या कोई भी, उसमें आपने सर्टन राइटिंग के कन्वेंशन को फॉलो करना होता है, तभी आपकी राइटिंग स्ट्रॉन्ग होती है.
तो और वो जो कन्वेंशंस को जब आप फॉलो कर रहे हो, इट मींस कि यू आर एडिटिंग और यू आर प्रूफ रीडिंग। सो राइटर्स यूज कन्वेंशंस द वे आर कारपेंटर यूजेस अ हैमर एज अ टूल। Conventions are a way to express thoughts and feelings, but they are not the expression themselves. Okay, so एक वे है, वो टूल है, तो वो कन्वेंशन आपने फॉलो करने हैं। सो कंटेंट क्रिएटिविटी एंड स्टाइल क्रिएट इंटरेस्ट, बट विदाउट कन्वेंशन दैट इंटरेस्ट कैन बी बेरिड इन इनक्रेडिबिलिटी। तो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा लेकिन वो उसमें किसी तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी तरह के किसी कन्वेंशन को कोई नहीं फॉलो किया गया, हो सकता है कि आपके उस बेस्ट कंटेंट की तरफ तो देखे भी। तो एडिटिंग और कन्वेंशन को फॉलो करना दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और खासतौर पे एकेडमिक वर्ल्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप जनरली आप डायरी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप जो है वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने और आप चाहते हैं कि आपकी जो राइटिंग है वो एक्सेप्ट की जाए, पढ़ी जाए, पब्लिश हो, तो उसके लिए आपको कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ता है। और ऑल द वर्ल्ड, कोई भी जो आपको पता है कि मैगजीन है और कोई भी रिसर्च जर्नल है, तो जब भी आप वहाँ पर अपना आर्टिकल या कुछ भी भेजने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि आपने इस फॉर्मेट को क्या करना है, फॉलो करना है। तो इट मीन्स कि यू आर फॉलोइंग कन्वेंशन। अगर आप उनके बगैर भेज देंगे तो हो सकता है कि वो आपके उस रिसर्च आर्टिकल को देखे भी ना, हो सकता है कि उसका कंटेंट बहुत पावरफुल हो, लेकिन इसके बावजूद आस्क स्टूडेंट्स टू फर्स्ट रीड देयर पीसेस अलाउ टू देमसेल्फ, ये एक तरीका है प्रूफ रीडिंग का। चेकिंग फॉर हेजिटेशन एंड ग्लिचेस which can point to grammar or punctuation problems, इसमें they have students cross out and replace rather than erase नहीं करना, बल्कि क्रॉस आउट करके रिप्लेस करते जाना, ये ना इरेज करें और बाद में याद ही ना रहे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, which quickly erodes a draft into smudges, marks and holes. Okay, so proofreading में इन चीज़ों को आपने देखना है, पंक्चुएशन को आपने देखना है। तो क्या does each sentence end with a proper mark, or are phrases broken into sentences where appropriate? Are the run-ons or are they run-ons or fragments, और आर पॉजेज मार्क बाय कॉमर्स। ओके, इन चीज़ों को आपने, इनके पंक्चुएशन के सारे रूल्स को आपने वहाँ पर देखना है कि प्रॉपर कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कॉलन सही जगहों पे लगे हुए हैं, क्वेश्चन मार्क्स ठीक लगे हुए हैं, या फ्रेजेस ठीक तरह से ब्रेक हुई हुई हैं। ये है कैपिटलाइजेशन। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे इग्नोर कैपिटलाइजेशन व्हाइल राइटिंग। तो कैपिटलाइजेशन आर बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस, डेट्स एंड प्रॉपर नाउन कैपिटलाइज, ये भी आपने देखना है। अग्रीमेंट, दो सेंटेंसेस अग्री इन नंबर एंड सेंटेंस, तो अग्रीमेंट इज कंकर्ड, हम इसको जो है वो कहते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब होना चाहिए, प्लूरल है तो प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि सर्टन इंग्लिश रूल्स हैं कंकर्ड के, अग्रीमेंट के, जिनको आपने फॉलो करना होता है। तभी आपकी राइटिंग क्या होती है, एक्सेप्टेबल भी होती है और अंडरस्टैंडेबल भी होती है। अगर आपके वर्ब और सब्जेक्ट में अग्रीमेंट ठीक तरह से नहीं है, तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट राइटिंग, और उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए दैट इज नेसेसरी। और टेंस यूजुअली कंसिस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट। अगर कहीं पे बहुत शदीद ज़रूरत है कंसिस्टेंसी का, ये भी मतलब है कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज, उनके जो टेंस है वो आपस में मैच करना चाहिए। पास्ट है तो वो भी पास्ट में होना चाहिए। इसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक जो रूल्स होते हैं उनको भी देखा जाना चाहिए, प्रेसिपिटेशन को भी देखा जाना चाहिए। लेकिन टेंस को यूजुअली एक राइटिंग के अंदर कंसिस्टेंट रखना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट में लिख रहे हैं कि कोशिश करेंगे प्रेजेंट में लिखें, अगर कहीं शदीद ज़रूरत है पास्ट में किसी रेफरेंस देने की तो वहाँ पे आप दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली आप कोशिश करें कि एक ही टेंस में क्या करें, अपनी राइटिंग को मूव करें। क्योंकि ये जो जंप करते हैं वन टेंस टू अनदर, तो एक तो ये है कि लिखने में फॉर्म्स की बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, और उसके साथ साथ जो मीनिंग है उस राइटिंग के वो क्लियर नहीं होते। सो एंड देन वी हैव द लास्ट वन, पब्लिशिंग। ऑब्वियसली ये लास्ट स्टेप होता है, तो अगर आपने फर्स्ट स्टेप सारों को फॉलो किया है तो अ लॉट ऑफ चांसेस आर देयर कि आपका जो वर्क है वो पब्लिश हो जाएगा, ये एक्सेप्टेबल होगा। ओके, इवन कि एक अच्छी असाइनमेंट को भी एक्सेप्ट करवाने के लिए इन प्रोसेस में से गुजरना ज़रूरी होता है। तो पब्लिशेबल वर्क के उसके लिए तो ज़्यादा कन्वेंशन की ज़रूरत होती है। So, like attention to conventions, the neatness and presentation of a piece of writing will help ensure that readers take it seriously. कि आप जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह से उसकी नीटनेस है, तो वो that would be taken seriously. अगर आप अपनी राइटिंग के बारे में ही नॉन सीरियस है, तो how can you expect from other people they would be serious about your writing? They cannot be serious about your writing if you are not serious with your own writing. So that is why present seriously, as if you mean business. Okay,
सो अगर जो है वो वाकई आप चाहते हैं कि वो पब्लिशेबल है और उसकी वर्थ है, the next great American novel will languish on the shelf if it is not presented in a way that makes the reader peep at the dust jacket. तो क्यों, वो अगर प्रेजेंटेशन नॉवल की अच्छी नहीं होती तो रीडर उसकी तरफ देखता नहीं। तो अ बिजनेस प्रपोजल detailing the next revolution in nanotechnology won't be taken seriously if scrawled in pencil on the back of the napkin. okay? एक बहुत बड़ी नैनो टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन लाने वाली प्रपोजल है, लेकिन अगर आपने नैपकिन की बैक पर पेंसिल से लिखी है, नोबडी वुड बॉदर अबाउट कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो ग्रांटेड प्रेजेंटेशन हैज नथिंग टू डू विद कंटेंट, ये तो बात एक्सेप्टेबल है कि कंटेंट इज इम्पोर्टेंट एंड ऑल अदर, लेकिन it is also important कि उस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे है। बट इन राइटिंग प्रोसेस एंड टू अलाउ स्टूडेंट्स टू use writing for their own purposes later in life, they will need to learn how to present their work appropriately. तो अगर वो अगर आपने प्रेजेंट करना सीख लिया तो लाइफ में जो एजुकेशन आपकी जो जो बढ़ती जाएगी, अल्टीमेटली आपको एक मेथड आ जाएगा। जैसे कि एक बच्चा अगर एक रिसर्च बीएस लेवल पे कर लेता है तो अल्टीमेटली वो एमएस में जाता है, इवन पीएचडी में भी जाता है, तो ही नोस व्हाट इज रिसर्च प्रोसेस, उसने कैसे करनी है। तो कहीं पे आपने राइटिंग के रूल्स को फॉलो किया तो अल्टीमेटली दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू इन योर कमिंग एकेडमिक करियर। और अगर आपने उन राइटिंग के रूल्स को फॉलो नहीं किया, राइटिंग प्रोसेस को आपने फॉलो नहीं किया, तो हर जगह पे आपको आपकी राइटिंग की रिजेक्शन के चांसेस भी हैं, नो बडी वुड एक्सेप्ट योर राइटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो दैट इज़ वाई राइटिंग प्रोसेस को फॉलो करना, ये आप 1 2 3 4 टाइम्स फॉलो करेंगे तो दैट वुड बिकम योर हैबिट। सो इसी तरह से लिखना भी, कोई भी काम आप लिखना चाहते हैं तो उसकी ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं, राइटिंग प्रोसेस फॉलो। इवन आप एक अच्छा ऐसे प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सीएसएस, तो आप ये राइटिंग प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो ऐसे की वर्क है वो क्या होगी, बेटर होगी, और उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी बेटर होगी, and a lot of chances are there that it would impress the examiner। और अगर आपने रेंडमली चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया और रेंडमली आपने एंड कर दिया तो उनकी जो वर्थ है वो नहीं होगी। So that is all for today. So our topic was the writing process. I hope you have enjoyed. So until next time, Allah Hafiz. That's all for today.